Okay, good morning, guys. So, this is our second class, and we should be doing some little bit of mathematics. Our little bit is only big enough, correct? तो हमारा आधा काम तो हो गया है सेट्स का, राइट? इफ़ यू एक्चुअली सी योर चैप्टर, हमारा मेन जो था सेट्स में वो ऑलमोस्ट हो गया है. अभी उसका फिर रिलेशंस और फंक्शंस रह जाएंगे. तो फिर भी बहुत कुछ सारे चीज़ है जो हमको करने हैं, राइट? वी हैव टू डू स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. So let's go with this. I hope you're comfortable with this. Very soon things will change, the way we are recording things and all. It will start changing, but you'll have to give me some patience, right? Now, the last thing we saw was power sets, right? Now after power sets, what happens is there's a set called as equal set, and there's something called as equivalent sets. Okay, दोनों में डिफरेंस है. इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट. ओके, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि दोनों सेम है, बट इट्स लिटिल डिफरेंट. यू हैव इक्वल सेट्स एंड देयर इज इक्विवेलेंट सेट्स. तो अभी इक्वल सेट क्या रहते हैं? ओके, इक्वल सेट्स मीन्स दो सेट विच हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स द सेम कार्डिनल नंबर. याद है कार्डिनल नंबर हमने किया था? कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, correct? So if they have the same number of elements and they have the same elements also, okay, so that's basically how it goes in. So you have two sets, they're equal if they have the same number of elements and those elements are themselves same. इसका फॉर्मल डेफिनेशन ऐसा रहेगा कि अ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट द टू सेट्स आर इक्वल. तो अगर दोनों सेट अगर तुमको प्रूव करना है दैट इफ ए इज इक्वल टू बी, वन ऑफ द theoretical methods is prove that A is a subset of B and then prove B is the subset of A. That automatically makes the set A equal to set B. For example, if I consider the set A to be the set of letters in the word, which word to take? Beauty. Okay, so what are those? B, E, A, U, T and Y. Okay, and I take the say set B to be set of all the letters in the word, the first five letters in the word beautiful and Y. Okay, so if you have this word beautiful, BAUTIFUL, so इसके first five letters 1 2 3 4 5, so BEAUT and then also I'm adding Y to it. तो ये Y भी ऐड कर लिया. So इसमें क्या हो गया? A is beauty, B is also beauty. So the number of letters over here are 1 2 3 4 5 and 6. Over here also 3 4 5 6 and each element is same. So these two sets are equal. Okay, तो ये होते हैं equal sets. Now what is equivalent set? Okay, so what are equivalent sets? Equivalent sets में क्या हो जाता है? The number of elements are same. Both the sets have the same number of elements, but they may not be equal. That means those elements may not be same. So for example, if I take a set A, so this is equivalent sets, equivalent set. ओके, इसमें क्या हो रहा है? सपोज ए इज़ इक्वल टू ABCD, तो ये कितने लेटर्स हो गए? 4. सेट बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ इक्वल टू 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज़ ऑल्सो 4. दे बोथ आर सेम. सो व्हाट डज दैट मीन? This A and B are equivalent, but they are not equal sets. Okay, so sets can be equivalent but not be equal, but equal sets will necessarily be equivalent.
क्योंकि अगर वो इक्वल सेट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, तो इक्वल सेट्स विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट. इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट. Okay, they will be equivalent, but equivalent sets cannot be equal sets. ठीक है, so that is one of the basic things. Now next is we will see something called as complement of a set. तो हम लोग ने universal set देखा था, correct ना? We had seen what is an universal set. So now we will see the complement of a set. Complement of a set. सो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? तो ये हमारा सपोज यूनिवर्सल सेट है. हम लोग पहले फिगर के साथ जाएंगे. सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, जो हम लोग ने एक एग्जांपल देख लिया था. सो सपोज इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी. सो इसमें कौन से हैं? सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, ऐसे हम लोग ने लिए थे. बट सपोज आई जस्ट टेक वन ऑफ देम, से अकाउंट्स. ओके, वन अमोंग देम इज अकाउंट्स. हम लोग ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये अकाउंट्स भी है, इसके साथ फिज़िक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे बुक्स है लाइब्रेरी में है. तो उसमें से एक सेट है अकाउंट्स है. अभी दूसरा भी है, फिज़िक्स भी है, बट मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, है उधर. ओके, सो ये जो ए सेट इधर है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? द सेट ऑफ ऑल अकाउंट्स बुक्स इन द लाइब्रेरी. बट बाकी के बुक्स है ना, कौन से बुक्स है? फिजिक्स के है, केमिस्ट्री के है, वो किधर है? दे आर दीज बुक्स. Okay, so if this is the set A, so I'll just draw it again. Okay, if this is the set A, say set of all accounts, this is the universal set of all books, then ये A के बाहर जो बुक्स है, ओके, ये कौन से है? ऑल नॉन अकाउंट्स बुक्स. कोई भी हो सकता है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, लिटरेचर का कोई बुक होगा. Okay, it could be some story book, something, anything. Okay, whatever it is. A के बाहर जो मैंने शेड किया है, what is that? Set of all books which are not accounts. Correct? That we represent by the symbol A dash. So A dash is set of all non-accounts books. Correct? In this case, non-accounts. Spelling के accounts correct ना? Okay. Okay, so is a set of all non accounts books, right? So इसको हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? हाउ डू वी राइट दिस? कि A dash represents all those elements, is the set of all x such that this x should belong to you. इट शुड बिलोंग टू यू. यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए, लाइब्रेरी में तो होना चाहिए ना बुक, नहीं तो क्या फ़ायदा. सो इट शुड बी इन द लाइब्रेरी, इट शुड बी इन द यूनिवर्सल सेट, बट इट शुड नॉट बिलोंग टू द सेट यू आर टॉकिंग अबाउट. दैट इज, इट शुड नॉट बी अ अकाउंट्स बुक. सो एक्स बिलोंग्स टू यू, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. Okay, so A dash is the set of all x such that x belongs to the universal set, but x does not belong to A. Okay, so it represents set of all x such that st मतलब such that x belongs to the universal set. Okay, it belongs to universal set, but x does not belong to A. Okay, so now those of you who find this difficult, write this 3-4 times and explain yourself. Okay, ये 3-4 बार कभी कभी लिखना पड़ता है कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है. देखो कोई चीज़ है ना, 4-5 बार लिख लो. Okay, sometimes when you write things you will understand. It's like if I teach you how to skip. Okay, स्किपिंग करना मैंने सिखाया, तो मैंने एक रोप लेके आया. ओके, आई ब्रिंग द स्किपिंग रोप एंड देन आई डू द स्किपिंग. ओके, तो मैंने 1 मिनट में 120 130 जो कुछ है उतना स्किपिंग कर लिया. तुमको अच्छा लगा, तुमको भी मन में आया करना चाहिए, लेकिन तुमको आता नहीं है स्किपिंग. सो व्हाट आई विल डू, आई विल शो यू अगेन. अरे इसको कैसा करते हैं, आई विल टीच यू सम टेक्निक्स. दिस तुमको लगा, अच्छा लगा, बट यू आर नॉट गोइंग टू लर्न स्किपिंग बाय ऑब्जर्विंग मी. तुमको आइडिया आएगा, यू कैन हैव एन आइडिया हाउ टू स्किप, हाउ आई वॉज गोइंग थ्रू, वो एक साथ मोशन कैसे करना है, बट यू वॉन्ट बी एबल टू डू द स्किपिंग. मे बी यू विल स्किप वंस. ओके, एक ही जंप मारोगे या 2 जंप्स, देन व्हाट विल हैपन, दैट रोप विल स्टिक इन योर फुट and then you will be, I can't do it. But the only way out of it is you have to go on saying, okay, मैंने एक जंप मारा, so now next time I'll try for
2 jumps, so you take 2 jumps. Then if you're comfortable with 2 jumps, then you jump more, then 3, then 5, and then even 10 will be a big task. Okay, doing 10 jumps in a go, if you don't know skipping, it's a tough task, believe me. Okay, now you'll say, why are you saying that? Because that's how it had happened to me in 11th standard. तुम अभी 11th standard में जा रहे हो. Okay, you'll be in 11th standard. We used to have PT exams 11th May, and I had never done skipping all my life till 11th standard. So just before the PT exam, final PT exam, somebody told me, if you don't pass this PT exam, you'll fail in 11th standard. Man, that scared the hell out of me. Okay, मैं पूरा डर गया. So what I did, so I took a skipping rope and I practiced for 5-6 days. And then first day was horrible. It was horrible. But in 6 days I learned. Okay, I learned to do 120, 130 skippings. Okay, in 6 days, 1 week में what people were doing, I was able to do it. It's not that difficult. Okay, so that's how you have to be. You have to practice for mathematics. You will have to do this. ये लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो. समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ रहा है और लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट. करेक्ट ना? उसमें नुकसान थोड़ी होने वाला है. अगर वही चीज़ जो समझा हुआ चीज़ वापस लिखा तो अच्छा रहता है ना, उसमें कुछ बुरा नहीं होने वाला है. इफ़ यू राइट 4-5 टाइम्स, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट मोर ट्रबल. ठीक है. Now, so that is what is called as a complement of a set. So complement of a set क्या रहता है? All those elements which are outside the given set, but they are in the universal set. So हम लोग एक example लेंगे. Suppose you have this universal set to be elements 1, 2, 3, so on till 10. Okay, and then I have a set A which is equal to 3, 6, 5, 9. ओके, ये मेरा ए है. तो ए डैश क्या रहेगा? ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू, दे शुड बी इन यू, यानी कि 1 to 10 में ही रहने चाहिए, बट दे शुड नॉट बिलोंग टू ए. सो व्हाट विल बी दोज एलिमेंट्स? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं लिख सकता हूँ बिकॉज 3 यू में है बट वो ए में भी है, सो मैं ये ले नहीं सकता हूँ. सो 1, 2, देन 4, आई कैन नॉट टेक 5. ये जानबूझकर मैंने लिखा 3, 6, 5, 9. अगर पहले 5 लिख ले लेता तो यू वुड हैव सेड हाँ 5 लेना है, नहीं लेना है. बट इधर 6 और 5 मैंने जानबूझकर अलग अलग है ना, 3, 6 देन 5 आई रोट. सो इट्स 1, 2, 4. You can't take 5 and 6 because it's there. Then you'll have to take 7 and 8. You can't take 9 and it will be 10. ठीक है, ये समझ में आया? No problem with this. This shouldn't be that difficult now. Okay, it shouldn't be that difficult. So next we go with is union of sets. These are called as the operations on set. So union of sets. Union of set. ओके, यूनियन ऑफ सेट मीन्स क्या? हम लोग दो सेट को कंबाइन कर रहे हैं. तो बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान वाला चीज़ है. सपोज यू हैव अ सेट ए जिसमें 1, 2, 3 है. ओके, एंड बी है जिसमें 4, 5, 6 है. एंड आई विल टेक वन मोर सेट सी विच इज़ इक्वल टू 3 and 4. ठीक है, तो ये मैं भी थोड़ा देर के लिए यूज़ करूँगा. सो ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं यू. ओके, सो ए यूनियन बी क्या रहेगा? जो एलिमेंट्स ए में है और बी में है लिख दो. तो कौन से है? ए में 1, 2, 3 है, लिख दो. कॉपी तो करना है. बी में कौन से है? 4, 5, 6, ये भी कॉपी कर लिया, हो गया काम हमारा. ए यूनियन बी इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6. जो दिख रहा है वो लिख लो. ए में जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं लिख लो, बी में जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं लिख लो. सिर्फ ध्यान क्या देना है कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. मीन्स अभी सपोज ए यूनियन सी लेना है मुझे, ए यूनियन सी. सो व्हाट आई विल डू? 1, 2, 3 ए का तो लिख लिया. अभी आई वॉन्ट राइट अगेन 3 and 4, ये गलत है. ठीक है, व्हाट आई विल डू? ए इज़ 1, 2, 3 लिख लिया, बट ये 3 रिपीट हो रहा है तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 4 है जो अलग है, तो ये लिख लिया मैंने. ओके, सो ए यूनियन सी विल बी 1, 2, 3, 4. व्हाट विल बी बी यूनियन सी? हम लोग इधर लिख लेंगे. बी यूनियन सी विल बी व्हाट? ये 4, 5, 6 है तो मैंने लिख लिया 4, 5, 6. अभी इधर 3 and 4 है, लेकिन 4 दोनों जगह पे, तो 2 बार लिखना नहीं है. नॉर्मली आई वुड हैव रिटन 3 and 4, बट दोनों जगह है ना, तो ये 4 ऑलरेडी लिख लिया है, वापस नहीं लिखना है. सो इट्स 3. ओके, सो इट्स 3, 4, 5, 6. बी यूनियन सी हम लोग ने लिख लिया.
राइट. सो ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड और, आई एम यूजिंग दिस एंड और एक्स बिलोंग्स टू बी. ओके, तो इसमें क्या हो जाता है? एंड और मीन्स अगर सपोज एक चीज़ ए में है और बी में नहीं है तो भी लिख देना है. ओके, इफ इट्स देयर इन ए बट इट्स नॉट देयर इन बी, यू स्टिल राइट इट. 1 2 3 हम लोग ने इधर लिख लिया था. ओके, देन इफ इट्स देयर इन बी बट नॉट इन ए, यू राइट इट 4 5 6. तो जो है वो लिख देना है. सो एक्स बिलोंग्स टू ए, सो और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि इधर बिलोंग हो रहा है या इधर बिलोंग हो रहा है, लिख लो. अगर दोनों जगह भी बिलोंग हो रहा है तो भी लिख लो. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज 1 2 3 एंड 3 4, 3 and 4 were belonging to both of them, but still you have to write it. So 1 2 3 4 5 6. So that's what that and or represents over there. Now that or over there has many meanings, we'll come to it little later. ठीक है, at present ये आ गया. अभी एक चीज़ देखो, ये ए यूनियन बी है. क्या है? 1 2 3 4 5 6 हम लोग ने इधर लिख लिया. आई विल आस्क यू नाउ व्हाट इज बी यूनियन ए. बी यूनियन ए क्या रहेगा? बी में जो है 4 5 6 तो मैंने लिख लिया 4 5 6. ए में क्या है? 1 2 3, सो आई हैव रिटन दैट ऑल्सो 1 2 3. सो व्हाट डज दिस मीन? This if you see this set B union A and if you see A union B, they both are same sets na. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, same number of elements and they have the same elements also. सिर्फ ऑर्डर इधर उधर लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, दैट ऑर्डर डजंट मैटर. अंडरस्टूड? ओके, सो दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर. इट्स लाइक दिस. सी, अगर हम लोगों ने बोला कि हमको एक इंडियन क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना है. सो सपोज आई ब्रिंग, मैंने लिस्ट लिखा. ओके, सो आई राइट फर्स्ट पर्सन विराट कोहली, सेकंड पर्सन रोहित शर्मा, द थर्ड पर्सन जो कोई है. ओके, आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई जस्ट नो फ्यू पीपल. ओके, नथिंग पर्सनल. ऐसे मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं क्रिकेट. बहुत मे बी अ ईयर और 2 years हो गया. Even the World Cup I didn't see. Somewhere last year it happened, World Cup, right? 2 years back. So I didn't see much. Even that very famous match where it got tied up and all. So I didn't see somehow. Okay, जो कुछ I don't remember the whole thing. So I didn't land up watching it. Now, so ये जो सब लोग हैं, I know the old people, so I'll just assume it like this, that I have written Virat Kohli, Rohit Sharma, and then Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, and ऐसे इनको लिस्ट लिख दिया. ओके, तो अभी मैंने ये 4 लोगों का नाम लिख लिया मेरे टीम में. अभी मेरा साथ और एक कोई तो है, उसने बोला देख तेरे टीम में ये 4 लोग होने चाहिए. मैंने बोला कौन? सो ही सेड सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. ओके, तो मेरा ऑर्डर क्या था? विराट कोहली, देन रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ एंड सचिन तेंदुलकर. इसका ऑर्डर क्या है? मेरे फ्रेंड का ऑर्डर क्या है? वो बोल रहा है सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ एंड विराट कोहली. ओके, तो अभी मुझे एक बोलो, हम दोनों का टीम अलग है क्या? Is our teams different? Are our teams different? No, they're the same teams ना. This team and this team is same ना, लोग वही है. Okay, so the set over here is equal to the set over here. So it doesn't matter how you have written it. So 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6. So what we see is in general A union B is equal to B union A. ये एक हमारा प्रॉपर्टी आ गया. ओके, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी वी हैव डेवलप्ड. हम लोग ने ऑब्जर्वेशन से कर लिया. अभी तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ होता है क्या? होता है, लेकिन हमको देखना नहीं है प्रूफ. ओके, वी डोंट वांट टू सी दैट प्रूफ. इसका प्रूफ होता है बट हमको देखना नहीं है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रूफ. ठीक है, राइट. सो दिस इज यूनियन ऑफ सेट. सो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी, लर्न दिस ऑल्सो. ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए and or x belongs to b. So that is A union B. Now this possible that your textbook doesn't use this word and over there. Okay, so I have no problem. You can check with your textbook. जो कुछ तुम्हारा textbook बोल रहा है that it should be like this,
that A union B should be only X belongs to A or X belongs to B. No problem, it's right. This is not wrong, but you can go with your textbook also. Okay, अगर उसमें और लिखा है तो और के हिसाब से जाओ. There is no problem with it. This is nothing wrong with this and there is nothing wrong with only or. ठीक है, as long as you understand what its interpretation is. ठीक है, right. So this is your A union B. Right, now there's one property we just forgot to check up, and that is with this complement of a set. ओके, तो अभी हम लोग ने ये देखा ए कॉम्प्लीमेंट ये सेट होता है, करेक्ट ना. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेट जो शेडिंग पार्ट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है. अगर मैं ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. इफ़ आई टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए डैश बट दे आर इन यू, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन दिस शेडेड रीजन बट दे शुड बी इन यू. तो कौन है, ए है. ए इज़ द सेट विच हैज़ ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए डैश. ये शेडेड रीजन के बाहर है ना, इसमें से कोई लाइन नहीं जा रहा है ए में से. सो ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कवर्ड बाय दीज लाइन्स बट दे बिलोंग टू यू, वो कौन है, ए. सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ए. ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए. अभी हमको ये भी पता है कि ये कोई भी सेट हो तो उसका एक सबसेट होता है नल सेट, करेक्ट ना. उसका एक सबसेट कौन सा होता है, नल सेट. तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट कौन रहेगा, यूनिवर्सल सेट. ओके, सो फाई डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट. ओके, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन यू, यानी कि यू के बाहर होना चाहिए बट यू में नहीं. ऐसे सिर्फ नल सेट ही हो सकता है. सो ये तुम्हारा फाई हो गया. सो ये एक तीसरा प्रॉपर्टी है, ये याद रखो. ओके, सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ओके, एंड यू कैन हैव वन मोर प्रॉपर्टी. आई बिलीव इट शुड बी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट विल हैपन, देन इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो बी डैश विल बी अ सबसेट ऑफ ए. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट. ये पॉइंट तुमको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, दिस पॉइंट इज वी विल सी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ओके, सो लेट्स गो लाइक दिस. ओके, ये ओके मैंने थोड़ा गलती कर ली. लेट्स टेक दिस. ओके, सो दिस इज योर सेट बी एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी. Okay, A is a subset of B. So now what is A dash, all these elements, correct. ये A dash हो गया. I hope you are understanding. This is A dash. Okay, so अभी A dash ये हो गया, right. What is B dash, what will be B dash in this case, अगर universal set है and everything, what will be B dash, those elements which are not in B, राइट. सो उसमें ये बाकी का तो आ जाएगा बट उसमें ए भी आ जाएगा, करेक्ट ना, ए का पार्ट भी आ जाएगा. सो दिस विल बिकम बी डैश, राइट. बी डैश विल बिकम दिस. एंड ये अगर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग द यूनिवर्सल सेट, देन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये बी डैश, ये पार्ट आ गया, और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये ए, करेक्ट ना. यू अंडरस्टैंडिंग. I hope you get this again. This is A, this is B. So A dash is these elements. Okay, and what will be B dash? B dash will be this. Okay, it's obvious. So B dash will be a subset of A. A dash, I mean to say. Okay, so you'll have B dash is a subset of A dash. So if A is a subset of B, then B dash is a subset of A dash. Okay. Now, fine. So let's go with the next property, and that is intersection of sets. Okay. Now this union of sets का Venn diagram कैसे रहता है? Venn diagram for union of sets. ओके, सो ये तुम्हारा सेट ए आ गया, ये तुम्हारा सेट बी आ गया. ये मैंने अलग अलग लिख लिया. एंड देन देर इज़ अ चांस दैट कोई एलिमेंट्स ए एंड बी में कॉमन है. सो दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी.
So what is A union B? It represents all elements in A and all elements in B. All elements in A and all elements in B. So this is A union B का Venn diagram. This is a pictorial representation. अभी तुम बोलोगे ये important है क्या? हाँ है important. This will be useful for solving some problems later on, for probability and all, and in general you require it. Plus if you're going for CA foundation, वो टाइम पे ये सब intersection union बहुत काम में आता है. Okay, for logical reasoning we have some chapters where this will be very useful. Okay, so वो टाइम पे ये बहुत 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 काम आता है. So these are the two ways you can write A union B. ठीक है. Now नेक्स्ट वी गो विथ इज इंटरसेक्शन. एक टाइम यूनियन समझ में आया तो इंटरसेक्शन बहुत ईजी है. इंटरसेक्शन, एंड आई विल एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, आई विल एक्सप्लेन दैट विथ एन एग्जाम्पल. तो अभी ये तुम्हारा ए है, सपोज इज 1 2 3 4, ओके, एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6. ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को हम लोग लिखते हैं ऐसे. सो ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी में कॉमन क्या है? तो इधर 3 and 4 है, इधर भी 3 and 4 है, तो ये दो ही चीज़ कॉमन है, तो हम लोगों ने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी इज 3 and 4. सो ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट्स द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी में जो कॉमन है वो लिख दो. ए यूनियन बी में क्या है? जो ए में है जो बी में है लिख दो. सिर्फ इतना याद रखो कि उसको रिपीट नहीं करना है, बस. ओके, आसान हो गया ना. करेक्ट. फॉर्मल डेफिनेशंस तो है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड और एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स, वो तो सब है, लेकिन आसान चीज़ भी रहती है कि ए यूनियन बी में सब कुछ लिख ले भाई. करेक्ट ना. जो खाने में दिया है प्लेट में सब कुछ खा ले. राइट, अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू गिवन समथिंग ऑन द प्लेट टू ईट, हम लोग के ना योर पेरेंट्स मस्ट बी टेलिंग यू जो प्लेट में दिया है सब खाना है. ओके, सो वंस आई हैड आस्क्ड माय ग्रैंडमदर नमक भी, शी सेड यस. शी सेड इवन द सॉल्ट यू टेक शुड बी ओनली दैट मच विच यू गोना ईट. ओके, सो एनीवेज दैट इज़ देयर स्टाइल ऑफ लिविंग. बट मेरा कहना क्या है कि ए यूनियन बी में जो मिल रहा है सब कुछ लिख लो. ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है? जो कॉमन है उतना ही लिखना है. ओके, सो यू हैव टू राइट ओनली व्हाट इज़ कॉमन. लाइक तुम अभी फ्रेंड्स के साथ होटल में गए, तो अगर तुम्हारे पास 20 रुपया ही है, ओके, इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, बट सपोज यू हैव ओनली 20 रुपीज़ एंड यू बोथ वांट टू ईट समथिंग, राइट? सो नेचुरली यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन समथिंग विच यू बोथ वांट. सो मे बी लाइक 20 रुपीज़ में क्या आएगा? एक वड़ा पाव. Okay, so or something like that. You might buy one vada pav and half, but you cannot buy one vada pav when you want vada pav and the other person wants idli sambar. Okay, so you have to somewhere agree and come to a common term. Okay, neither vada sambar nor idli sambar or whatever it is, we will have bill. So in that case, that's fine, correct? So that's how it goes. You go to the common elements between A and B. ओके, सो दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. नेक्स्ट, तो अभी ये देखो ए इंटरसेक्शन बी में ये है 3 4. अभी मुझे ये बोलो बी इंटरसेक्शन ए में क्या रहेगा? 3 and 4 ही रहेगा, कॉमन एलिमेंट्स. सो व्हाट आई रिकग्नाइज, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं. A intersection B is equal to B intersection A. I'm not going through the whole list of formulas. इधर के इधर जो simple है वो बता रहा हूँ. I'll later on give you which laws to learn also. But right now just this much. Okay, इसको ज़्यादा learn करने की भी ज़रूरत नहीं है. A intersection B is equal to B intersection A. एक दूसरा चीज़ भी याद रखो, A intersection B intersection C, okay, is equal to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. इसका मतलब क्या होता है कि तुम पहले B इंटरसेक्शन C ढूंढ लो. कोई भी दूसरा एलिमेंट सेट है C, तो यू फर्स्ट फाइंड B इंटरसेक्शन C एंड देन फाइंड A इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ B एंड C.
जो तुमको मिलेगा इट्स सेम एज इफ यू वुड हैव फर्स्ट फाउंड आउट ए इंटरसेक्शन बी एंड देन हैव टेकन इंटरसेक्शन विद सी. सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ये ले लेते हैं ए इज़ 1 2 3 4, बी इज़ 3 4 5 6 एंड लेट्स टेक सी इज़ इक्वल टू 4 and 6. ओके, तो अभी देखो ए इंटरसेक्शन बी 3 and 4 आ गया था हमारा, राइट. ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग अभी इस तरफ से जाएंगे. बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन क्या है? 4. सो बी इंटरसेक्शन सी इज़ 4. सो वेयर शुड आई राइट? Okay, I wanted to write here only so that you are able to see. So let's do it over here. Okay, B intersection C क्या आएगा? 4. Correct, there's nothing else. B और C में common सिर्फ 4 है ना? No, there's 4 and 6. Sorry. Okay, so B and C में common है 4 and 6. Right. And what is common between A intersection B intersection C? So what will be A intersection B intersection C? तो A और B intersection C में common क्या है? 1 2 3 4. This is 4 and 6. So only 4 is common. So you'll have 4. ठीक है ना. हम लोग उल्टा जाएंगे. ए तो ये तो हमारा फर्स्ट LHS आ गया. अभी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे. पहले ए इंटरसेक्शन बी हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था, 3 and 4 है. ओके, इसका इंटरसेक्शन विथ सी करना है. 3 4 का इंटरसेक्शन विथ 4 and 6. व्हाट इज़ कॉमन? ओनली 4. सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हमको क्या दे रहा है? 4. सो इट डजेंट मैटर वेदर यू टुक दिस वंस इंटरसेक्शन फर्स्ट और दिस वंस इंटरसेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जाओ इट विल बी द same thing. So A intersection B intersection C is same as A intersection B intersection C. Okay, this is called as an associative property. इसका नाम क्या रहता है? Associative property. Okay, ये associate कर रहा है. Okay, this is called as associative property. और ये जो A intersection B is equal to B intersection ये A आ गया, this property is called as commutative property. Okay, commutative property, ये इसका नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है. Okay, A intersection B is equal to B intersection A is commutative property. Same thing goes for this A union B जो हम लोग ने इधर देखे थे, A union B is equal to B union A. This is also called as commutative property. Okay, understanding? We'll see this properties little bit later. Yeah, at present I'm just going little fast. ठीक है. सो ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में व्हाट विल हैपन इज, इसका वेन डायग्राम कैसे आएगा? यू टेक दिस. ओके, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, तुमने ए ले लिया, तुमने बी ले लिया, ये ए है, ये बी है. ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? इट विल बी दिस कॉमन एलिमेंट्स. ओके, ये जो कॉमन पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी. राइट, इज दैट फॉलोड? ओके, इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम लोग आएंगे, अभी दोनों साथ में ले लेंगे. ओके, विल चेक ऑल दिस थिंग्स इन वन गो. फाइन. सो लेट्स चेक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ओके, तो हम लोग ज़रा साथ में ले लेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन. तो ज़रा साथ में रहेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा ना, हम साथ साथ है ऐसा कुछ तो हो जाएगा. सो विल टेक इट टुगेदर. ओके, तो इसका फर्स्ट हम लोग ने देख लिया, कौन सा था? ए यूनियन बी. ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये हमने देख लिया. ये कौन सा था? कॉम्यूटेटिव. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव. सो वैसे ही कॉम्यूटेटिव इसमें कौन सा रहेगा? इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. दोनों का नाम वही है, कॉम्यूटेटिव. ये यूनियन के लिए है, ये इंटरसेक्शन के लिए. हम लोग इनफैक्ट बोलते हैं मैथ्स में, वी गो लाइक दिस दैट ए स्टार बी इज़ बी स्टार ए. ओके, इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव बोलते हैं. तो बोले इसका मतलब क्या है कि तुम ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है. ए स्टार मतलब स्टार के जगह पे कुछ भी होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, डिवीजन होगा, या यू से यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन. तभी देखो हम लोग ने ये तो स्कूल में पढ़े हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. सो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव. हम लोग ने एडिशन देखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी कॉम्पिटिटिव है. बट अभी ये चीज़ देखो, ए माइनस बी इज इट इक्वल टू बी माइनस ए? इट्स नॉट.
ओके, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव. सो तुम बोले क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेसेसरी है. ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए. सो ये कॉम्पिटिटिव नहीं है. ओके, सो ऐसे जैसे इधर हो जाता है तो हमको सेट में भी मालूम होना चाहिए वेदर दे आर कॉम्पिटिटिव और नॉट. सो यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर कॉम्पिटिटिव. Okay, union and intersection, they both are associative. That means A union B union C is equal to A union B union C. एंड ये अब भी हम लोग ने देख लिया एग्जाम्पल के साथ. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, एसोसिएटिव property. So both union and intersection are commutative as well as associative. ठीक है. Now next is एक चीज़ होता है which is called as identity. ओके, एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी. जैसे इन मल्टीप्लिकेशन द एलिमेंट 1 इज एन आइडेंटिटी. ठीक है, एलिमेंट 1 इज एन आइडेंटिटी. तुम बोलोगे उसका मतलब क्या है. सी ए इंटू 1 इज वॉट, ए. करेक्ट, ए इंटू 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 इज एन आइडेंटिटी. जो एलिमेंट तुमको वही चीज़ वापस देता है उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए. ये मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी है एंड 0 एडिशन के लिए आइडेंटिटी है. ओके, सो वैसे आइडेंटिटी रहता है सेट में. तो सेट में ऐसे जाएगा ए यूनियन फाई, ए यूनियन अ नल सेट, यानी कि ए यूनियन विथ नथिंग विल बी व्हाट, ए ओनली ना. करेक्ट ना, ए यूनियन विथ नथिंग इज ए. इट्स लाइक दिस, ए प्लस 0 इज ए. करेक्ट ना, ए यूनियन विथ ए मीन्स ए यूनियन फाई क्या है, राइट ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड राइट ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन फाई. तो ए के हम लोग ने सब लिख लिए, अभी हम लोग फाई के लिखने जा रहे हैं, लेकिन फाई में कुछ है ही नहीं तो कुछ लिख नहीं सकते. तो किसका लिख लिया, सिर्फ ए का लिख लिया. सो वी हैव ए यूनियन फाई इज ए. ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन. ओके, तो इसमें ये फाई ने किस चीज़ का काम किया, आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन. अभी इंटरसेक्शन में कौन काम करेगा वैसा, इट शुड गिव यू द सेम थिंग. इंटरसेक्शन में अभी ए इंटरसेक्शन फाई लिया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन ए एंड फाई. बट इफ आई टेक ए इंटरसेक्शन विथ ए, देन व्हाट विल हैपन, आई एम टेकिंग ए इंटरसेक्शन विथ ए. सो ए और ए में जो कॉमन है वही लिखना है मुझे. करेक्ट ना, whatever is common between A and A, what is common, entire A. So A intersection A is A. So this is the identity of intersection. Okay, next the fourth one is A union A से क्या हो जाएगा, A union A. A और A को साथ में ले लिया, यानी कि I have written all the elements in A, then again I am writing the elements in A. तो अभी 2 बार तो लिख नहीं सकता हूँ, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा. तो बचेगा क्या, A. So A union A will be A. ठीक है, so A union A is A and this is called as the idempotent law. Okay, idempotent law. Law. Okay, idempotent law. सिमिलरली इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही आएगा. ए और ए में हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, इट्स कॉमन. ओके, सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ए इंटरसेक्शन फाई देखेंगे. ए इंटरसेक्शन फाई विल बी व्हाट, इट विल बी द नल सेट. राइट. ओके, सो ये हमारे लॉज आ गए, idempotent लॉ एंड वी हैव दिस. नाउ आई जस्ट मेड अ लिटिल बिट रॉन्ग. ये मुझे पहले लेना था, मैं लिखा नहीं. आई सेड दिस ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई, बट आई डेंट राइट इट, सो इट्स जस्ट लिटिल बिट ओवर हियर. ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इज द idempotent लॉ. ठीक है, ये idempotent लॉ है. ओके, थोड़ा सा गलती हो गया, दैट आई सेड दिस बट आई डेंट राइट इट, आई रोट दिस अदर पार्ट. ठीक है, सो इतना थोड़ा सा ध्यान दे देना. Okay, so these are the 4-5 properties. Now there is one more property that these sets have. Okay, ये important properties है, इसके और भी और 4-5-10
प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, वो उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट देर इज़ अनदर प्रॉपर्टी विच दीज सेट्स हैव एंड दे आर important, and that is called as the distributive property. Okay, it's called as the distributive property. So ये distributive property क्या है? So it's like A union B intersection C is A union B intersection A union C. Okay, so ये एक property हो गया distributive property. Then if opposite also is there, A intersection B union C, this is equal to A intersection B union A intersection C. अभी कोई के लोग इसको देख के डर जाते हैं, क्या हो रहा है सब उल्टा पुल्टा, एक तो सीधा यू लिखना आता नहीं, उल्टा यू कैसे लिखेंगे. ओके, सो उधर लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल. दिस इज़ एज इफ इट्स यू आर टेकिंग ए इंटू बी प्लस सी, दोनों जगह पे ए इंटू बी प्लस सी. ये क्या हो रहा है, ए इंटू बी, करेक्ट, प्लस ए इंटू सी, यानी कि क्या हो रहा है, ए इंटू ये एलिमेंट प्लस ए इंटू ये एलिमेंट, करेक्ट ना. हम लोग वैसे ही करते, ए इंटू बी, इट्स लाइक ओपनिंग द ब्रैकेट्स, सो इट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग ए इंटू दिस एलिमेंट प्लस ए इंटू दिस, सो ये आ गया. सो व्हेन यू हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स ए यूनियन इंटू दिस, ओके, एंड प्लस और दिस साइन a union this. Here also something like that, a intersection this element, this sign a intersection c. Okay, that's what we are writing over here. I hope you are understanding this part. Okay, now so ये हो गया. देन वी कम टू इज डी मॉर्गन्स लॉज. ये तो बहुत बार लगता है, डी मॉर्गन्स लॉज, ये तो तुमने पढ़ा भी रहेगा, बट वी रिक्वायर इट. एंड व्हाट आर दीज लॉज? दीज लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इट विल बिकम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ओके, and if you're taking A intersection B dash, then this will be A dash union B dash. Okay, ना बहुत से बच्चे लोग क्या होता है, ये देख के थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, मैंने यार ये क्या है ये मैथ्स में. सी अभी यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर हमारे पास एक कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सपोज 20 चैप्टर्स है. ओके, लाइक इन दिस बुक यू हैव सम, how many chapters are there? Some 8 to 9 chapters, 10 chapters, 9 chapters. Okay, we have 9 chapters. The other book, imagine there are another 9 chapters. Let's assume like that. ठीक है, so overall कितने chapters हो गए? 18 chapters. अभी 18 chapters में 2 या 3 chapter तो थोड़ा तो बोर करेंगे ना, करेक्ट ना? It's obvious. 18 चैप्टर्स में से 2 या 3 चैप्टर्स तो तुमको बोर करेंगे. अभी ऐसे भी होता है, कोई लोगों को ये पसंद आ जाता है. Some people like this kind of mathematics people like. Okay, there are some people who don't like this mathematics. Some people like geometry very much, but they don't like algebra. ओके, बहुत लोग होते हैं जिनको वो मीडियन एंड इधर से ये ड्रॉ किया, उसमें बहुत उनको ऐसा क्या बोलते हैं, किक मिलता है उनको. ओके, दे गेट वेरी एक्साइटेड, है ना. सम कंस्ट्रक्शन करके कोई तो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्राइंगल, वी कैन प्रूव, दे लाइक मैन दैट्स ऑसम. Okay, but then there are some people, what nonsense this is. For some people much easier is x square minus 3x plus 7x plus 2x plus वो करते बैठो, वो अच्छा काम है. या a boat goes upstream and goes downstream, ऐसे कुछ प्रॉब्लम कर लिए, कोई लोगों को वो पसंद आता है. But then they feel this geometry is boring. And those people who are like that geometry sometimes feel this algebra is boring. So ये हो जाता है. आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें भी एक आधा चैप्टर रहेगा जो आपको बोर लगेगा. अभी तो यू डोंट नो मच अबाउट अकाउंट्स, सो यू डोंट नो, यू मैं बहुत बोर चैप्टर है मे दिस, आई डोंट नो मच. ओके, बट लाइक फिजिक्स में, ओके, सम पीपल फाइंड फिजिक्स का कोई चैप्टर्स वेरी बोरिंग. क्या आप बोर कर रहे हैं. लाइक फ्लूइड डायनेमिक्स, कोई लोगों को बहुत बोर लगता है. सम पीपल गेट इंटरेस्टेड इन फ्लूइड डायनेमिक्स, पास्कल्स लॉ एंड बर्नौलीज थ्योरम, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. बट कोई यार बहुत बोर है, क्या हो, पानी को समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो दैट विल हैपन. So that doesn't mean you just get nervous with this. Okay, so let's go ahead. And one of the last points for today, okay, the last thing that we are going to see, and that is difference of sets. Okay, so difference of sets. Okay, that is if you have a set A
माइनस सेट बी। इसका मतलब क्या होता है? सेट ए माइनस सेट बी, इट मीन्स इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स. A minus b is a set of all x such that x belongs to A but x does not belong to B. Okay, so A minus b is a set of all x such that x belongs to A but x does not belong to B. So for example हम लोग ऐसे ले लेंगे A is equal to 1 2 3 4. Okay, B is equal to 2 3. So what will be A minus B? It is the set of all elements which belong to A. So A को 1 2 3 4 लिख सकता था, but it should not belong to B, which is 2 and 3. So I'll write 1 and 4. Okay, so 1 and 4 belongs to A, but it does not belong to B. So ये 2 और 3 को मैंने subtract कर लिया. So that's called as A minus B. If I find B minus A, B minus A क्या रहेगा? All those elements which belong to B but do not belong to A. तो ऐसा कुछ है ही नहीं, करेक्ट ना. 2 3 माइनस दिस कुछ बचेगा नहीं, तो ये नल सेट आ जाएगा हमारा. करेक्ट. बी माइनस ए विल बी नल सेट. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच शुड बिलोंग टू बी बट दे शुड नॉट बिलोंग टू ए. सो दे बिलोंग टू बी इज 2 and 3, बट वो ए को भी बिलोंग करते हैं, तो कुछ भी नहीं रहेगा, नल सेट आ गया. ठीक है. सो इसका डायग्राम कैसे रहेगा? वॉट विल बी द डायग्राम ओवर हियर ए माइनस बी का? इफ़ यू टेक सेट ए एंड यू टेक अ सेट बी, then this part, this is A, this is B, then this part. Okay, what will this represent? It will represent A minus B. अब एक चीज़ देखो इधर ही. ओके, दिस इज इक्वल टू A माइनस बी इज इक्वल टू, ये जो शेडेड रीजन है ये कैसा है? A माइनस A इंटरसेक्शन B. ओके, ये याद रखो, इट्स A माइनस A इंटरसेक्शन B, राइट? A minus A intersection B. So this is what you will get. A minus B is equal to A minus A intersection B. Fine. Now, okay. Now you can also write this A minus B in another way. A minus A intersection B है, but you can write it in one more way, and that is A intersection B dash. Okay, देखो अभी B dash के बाहर के चीज़ कितने हैं? ये पूरा है, करेक्ट ना? ऑल दोज एलिमेंट्स, दिस इज ऑल बी डैश. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. दिस होल थिंग इज बी डैश. ओके, ये पूरा का पूरा बी डैश है. सो ए इंटरसेक्शन विद द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बी डैश, सो इट विल बी ओनली दिस मच पार्ट. अंडरस्टैंडिंग? ओके, अगर ये नहीं समझते रहेगा तो बोल देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. सो दिस इज अनदर वे यू कैन राइट इट. ए माइनस बी इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश. सिमिलरली व्हाट विल बी बी माइनस ए? बी माइनस ए अभी कैसा रहेगा? ये हम लोग ने ए ले लिया, ये हम लोग ने बी ले लिया, ए बी, तो बी तो इधर आएगा, बी माइनस ए. दिस पार्ट विल बी बी minus a, correct now? This will be b minus a. So b minus a will be equal to b minus a intersection b या b intersection a, which will be equal to b intersection a dash या a dash intersection b. Okay, so there is a two ways. तो ये learn करना है, ठीक है? You are supposed to learn this. Fine. So that's what I'm finishing off for today. So from tomorrow we'll be able to, or the next time we'll be able to solve some problems on these. I'm going very slow right now. This is not the speed I go with. I am normally much faster than this, but मैं अभी स्लो जा रहा हूँ because you are still getting into 11th standard. तुम लोग कितना काम कर रहे हो वो भी पता नहीं है. Okay, so that's why I'm going slow. Don't worry, we're just in the beginning. We have not even started our 11th standard. We don't know when the colleges will start. We don't know how much portion will be changed. So nothing is known. इसलिए थोड़ा स्लो भी जा रहे हैं कि हमको भी पता नहीं पोर्शन कितना चेंज करने वाले हैं, ठीक है? So that's all for today. See you. If you have doubts, please revert back. Okay, you can call back, whatever it is. Ask the institute. They'll tell you when to ask me questions or whatever it is. Okay, so ये तुम्हारा काम है, questions है, please get back to me, ठीक है? उधर से बैठे बैठे अरे ये तो सर दिखाई भी नहीं देते हैं. सो आई एम होपिंग टू अरेंज थिंग्स वेयर आई विल बी विजिबल. ओके, वो थोड़ा सा कैमरा, बोर्ड, whatever, कंप्यूटर, वो सब चल रहा है, but it's not that easy. Things are not easy to get in.
ओके, और आया तो भी उतना जगह है नहीं है, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, ठीक है. सो आई होप यू कैन एडजस्ट विद मी. सो लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है. बाय.